Romans 12 verse 2. اور اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرو۔ جب آپ اپنی مائنڈ کو چینج کریں گے آپ کو خدا کی پارشل نہیں، آدھی نہیں، کمپلیٹ کامل ول مرضی آپ کے بارے میں معلوم ہو، اور وہ اسی وقت ہوگی جب آپ اپنا مائنڈ چینج کریں گے۔ ایک اور حوالہ دیکھیں گے، دوسرا کرنتھیوں اس کا 10واں باب اس کی 4 اور 5 آیت۔ اس لیے کہ ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں بلکہ خدا کے نزدیک قلعوں کو اٹھا دینے کے قابل۔ اپنے ساتھ والے کے کہتے رہے لڑائی کے ہتھیار قلعوں کو اٹھا دینے کے لیے۔ چنانچہ ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہے اٹھا دیتے ہیں اور ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح کے فرما بردار بنا دیتے ہیں۔ سب کہیں آمین۔ Sit down and never go down. Sit over your enemies. آپ اپنے دشمنوں پر بیٹھے ہیں یسوع کے نام سے۔ ہلیلویا۔ Renew your mind. اپنی عقل کو نیا کرے۔ نیا مائنڈ نیا لائف سٹائل، اولڈ مائنڈ اولڈ لائف سٹائل۔ اگر آپ اپنی زندگی کے اس لیول سے اکتا گئے ہیں اور اپنی لائف کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو چینج کرنے کے لیے آپ کو مزید ہارڈ ورک ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا مائنڈ چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہی آپ اپنی سوچ کو چینج کریں گے، اپنے مائنڈ کو چینج کریں گے، ہولی اسپرٹ آپ کے لیول کو چینج کر دے گا، کیونکہ خدا کی کامل مرضی سے اور خدا کے پاک روح کے ساتھ وقت گزار کے تجربے سے آپ اس کی کامل مرضی جو آپ کے شاندار فیوچر کے لیے آپ اس کو پہچان پائیں گے۔ بولے ہلیلویا۔ اپنے ساتھ والے کو کہ چینج یور مائنڈ، اپنے ساتھ والے کو کہ چینج یور مائنڈ۔ آج شیطان کی جنگ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ سے جنگ ریسلنگ کے رنگ میں نہیں لڑتا، وہ آپ سے جنگ آپ ہی کے مائنڈ میں کرتا ہے۔ آپ کا مائنڈ بیٹل گراؤنڈ ہے، جنگ کا میدان ہے، جنگ کا اکھاڑا ہے۔ آپ کے مائنڈ میں، آپ کی کھوپڑی میں شیطان آپ سے لڑتا ہے، وہ آپ سے باہر نہیں لڑتا، وہ آپ کے مائنڈ میں لڑتا ہے۔ اور اس کی لڑائی کے جو ہتھیار ہیں، پہلے خدا ہمارے ہتھیار بنا رہا ہے کہ ہمارے ہتھیار اس کے قلعوں کو اٹھا دینے کے لیے، تو وہ قلعے آپ کے مائنڈ میں بناتا ہے، وہ اپنے بڑے بڑے قلعے آپ کے مائنڈ میں بناتا ہے۔ میں امیر نہیں ہو سکتا، ایک قلعہ ہے آپ کے مائنڈ میں، آپ کی کھوپڑی کے اندر۔ یہ جو آپ کو خدا نے مائنڈ دیا ہے، شیطان اس پر اٹیک کر رہا ہے۔ اس کا اٹیک آپ کی باڈی پر نہیں ہے، آپ کے مائنڈ پر۔ باڈی خود بدن بیمار کر دے گی، باڈی خود آپ کو کمزور کر دے گی، اس کا ٹارگٹ آپ کا مائنڈ ہے۔ آج میں سمپلی آپ کو بتاؤں گا کہ 3 سٹیجز میں وہ اٹیک کرتا ہے، اور آپ کو کس طرح اپنے مائنڈ کو، اپنے سوچوں خیالات اور تصورات کو نیا کرنا ہے۔ بڑا ایزی ہے جب آپ اس کے لڑنے کا طریقہ سمجھ جائیں گے۔ شیطان سب سے پہلے اپنی سپیرٹس کی
पहली लश्कर को आप पर भेजता है, पहला फौजी दस्ता आप पर आकर अटैक करता है, और वो अटैक आपके माइंड पर करता है। ऐसे ही नहीं, आप यहां चर्च में देखते किसी आदमी में, औरत में बदबू आ गई और हम उसको निकाल रहे हैं, वो ऐसे नहीं है, वो कहीं से शुरू हुई है और उसकी शुरुआत माइंड से, माइंड से, बोले माइंड से। सबसे पहली स्टेज उसकी, वो आपको ख्याल देता है। मिसाल के तौर पर आपका अगर कोई बच्चा है, वो ख्याल दे रहा है, मिसाल के तौर पर कि तेरा बच्चा नहीं बचेगा, जस्ट एक ख्याल आया, तेरा बच्चा नहीं बचेगा, एक जुमला, एक सेंटेंस उसने डाला, उसे पता है कि आपका माइंड इस तरह खुदा ने तख्लीक किया है, ये फौरन उन ख्यालों, उन जुमलों, उन लफ्जों, उन आइडियाज की तस्वीर बना देता है, फिल्म बना देता है। आपका माइंड एक डायरेक्टर है, मूवी डायरेक्टर की तरह। आप उसको कहानी बताएं, वो मंजर कशी वो खुद बना लेगा, किसको हीरो रखना है, किसको हीरोइन रखना है, कौन सी जगह का सीन लेना है, ये सारा कुछ आपका माइंड खुद कर देता है। तो वो सिर्फ उसने ख्याल दिया कि तेरा बच्चा नहीं बचेगा, फौरन आपका माइंड जो एक मूवी डायरेक्टर की तरह काम करता है, जो आर्टिस्ट, जो कैरेक्टर, जो सीन खुद चुनता है, वो खुद एक मूवी बना देगा। और आप अपने बच्चे को कमजोरी की हालत में देखेंगे, आप अगली तस्वीर में, अगली वीडियो में अपने बच्चे को कफन में देखेंगे, आप अगली तस्वीर में लोगों को सफाई मातम पर रोकते हुए देखेंगे, आप अगली तस्वीर में कब्रिस्तान देखेंगे और कब्र देखेंगे। आपका माइंड विद इन अ सेकंड, विद इन अ ब्लिंक ऑफ सेकंड उस जुमले को, उस ख्याल को, जो एक बर्ड के पूप की तरह है, जिस तरह परिंदे आते हैं और वो पूप करते हैं, विट्ठे करते हैं, और उसने एक विट कर दिया, एक पूप कर दिया आपके माइंड पर, तेरा बच्चा नहीं बचेगा। आपके माइंड ने फौरन वीडियो बना दी, बच्चा कमजोर हो गया, आपके माइंड ने फौरन वीडियो बना दी, बच्चा जो है वो मर गया है, कफन में लपेटा हुआ है, लोग रो रहे हैं। अगला सीन, तीसरा सीन कब्रिस्तान का है और लोग उस पर मिट्टी डाल रहे हैं। उसने पिक्चर बना दी, किसने? आपके माइंड ने, उस ख्याल को लेकर। और फिर वो मंडे को ख्याल आया, ट्यूसडे को, मंगल को, बुध को, जुमेरात को, जुमे को, हफ्ते को ख्याल आया, इतवार को, सोमवार को, मंगल को, बुध को, फिर अगला हफ्ता गुजर गया, फिर अगला हफ्ता गुजर गया। आपने उस ख्याल को कैंसिल नहीं किया, आपने उस ख्याल का जवाबी हमला खुदा के कलाम से नहीं दिया, आपने उस ख्याल को एंटरटेन किया। आप वो ख्याल सोची जा रहे हैं बार बार, ओ मेरा बच्चा नहीं बचेगा, ओ वो मर गया है, ओ मेरे ज़हन में ख्याल वो कब्रिस्तान में है। आप बार बार उस ख्याल को देखी जा रहे हैं, रिपीट किए जा रहे हैं, रिपीट किए जा रहे हैं। आपने उस ख्याल को कैंसिल नहीं किया। जब वो ख्याल बार बार आपके माइंड में चलेगा मूवी की तरह, वो एक किला बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग होल्ड, वो आपका नेगेटिव ईमान बन जाएगा। कुछ भी हो, ये बच्चा नहीं बचेगा, ये मर जाएगा, काम मर्जी से दवाई ले लो, काम मर्जी से दुआ करवा लो, क्योंकि मैंने अपने माइंड में देख लिया, इसको मरा हुआ, इसको बीमार, इसको कब्र में। अब वो सारे ख्याल आपके माइंड ने बनाए शैतान के जुमले की वजह से कि तेरा बच्चा नहीं बचेगा। अब कुछ लोग गरीब क्यों हैं? शैतान आपको ख्याल देता है जितनी मर्जी मेहनत कर ले तो अमीर नहीं होगा, जितनी मर्जी नौकरियां कर ले तेरे हालात चेंज नहीं होंगे। उसने एक जुमला देकर छोड़ दिया। आपका माइंड उस जुमले पर पिक्चर बनाएगा, खुद फिल्म बना देगा, मूवी बना देगा। वो कहेगा ओ तेरा दादा भी गरीब है, तेरा बाप भी गरीब है, तू भी गरीब है, तू नहीं अमीर हो सकता। मूवी बन गई, आपको आपके दादे की गरीबी नजर आ रही है,
अपने नाने की, नानी की, फुप्पो की, चाचों की, मासे की, ताए की, फुप्पड़ की, माँ की साइड के सारे गरीब नजर आ रहे हैं, अपने गरीब नजर आ रहे हैं, दाद के गरीब नजर आ रहे हैं, नान के गरीब आ रहे हैं, फिल्म बनती जा रही है। आप बार बार जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर वही ख्याल सोचते रहे, ओ ये भी गरीब है, वो भी गरीब है, ये भी गरीब है, मेरे दोस्त गरीब, मेरा मोहल्ला गरीब, मेरे फ्रेंड गरीब, मैं गरीब, अब्बू गरीब, अम्मी गरीब। आप जब ये ख्याल सोचते जाएंगे, गरीबी का किला आपके दिमाग में बन जाएगा। कोई $1 मिलियन भी आपके हाथ में दे दे, आपका माइंड डब्बे की तरह बंद होगा। मैंने इसका करना क्या है? आपको सिर्फ खाने पीने और शॉपिंग के अलावा कोई ख्याल नहीं आएगा कि मैं इसको कैसे मल्टीप्लाई कर सकता हूं, मैं इसको कैसे इंक्रीज कर देता हूं। आपको उल्टा ये ख्याल आएंगे, ये नुकसान हो जाएगा, ये फ्रॉड हो जाएगा, ये डूब जाएगा, क्योंकि आपके माइंड के अंदर गरीबी एक किला बन गई है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ खवातीन जिनकी शादी नहीं होती, शैतान उनको कहेगा, ओ तेरा नक बड़ा मोटा है, तेरा रंग थोड़ा जा काला है, तू थोड़ी जी हेल्दी नहीं, वो कहेगा तू थोड़ी मोटी। अब वो लड़की बार बार शीशे के सामने देख रही है, ताइयों मेरा रिश्ता नहीं होता, जेड़ा आंदा मेरा नक वेख के चला जाता। अब वो कह रहा है तेरा नाक मोटा है, इतना सा कह दिया, आपका माइंड पिक्चर बनाएगा, मूवी बनाएगा, फिल्म बनाएगा, सबकी शादी हो जाएगी, तेरी सारे बहन भाइयों की, तेरे रिश्तेदारों की, तेरी नहीं होगी क्योंकि तेरा नक बड़ा मोटा है। आप खुदा के हुजूर दुआ करने के बजाय कहेंगे, रब तू एडा मोटा नक, हाथी वर्गा, गेंडे वर्गा मेरा नक क्यों बना। कईयों को कहेगी तू काली है, वो बेचारी बलीचे लगा लगा के पागल हो जाएगी कि उसके बावजूद मेरा रंग काला है, गोरा नहीं है, मेरी नहीं शादी होगी। शैतान कह देगा तेरी शादी नहीं होगी, तू बूढ़ी मरेगी, तू लोगों के बच्चे पालेगी। अब वो किला बन गया। कई लड़कियां आपको जब ये जुमला बोलते सुने, मैंने जिंदगी ऐसी गुजारनी है, मैंने शादी नहीं करनी, समझे उसके माइंड के अंदर किला बन चुका है। हालेलुया। दोबारा ये मैं आयत इंग्लिश में पढ़ूंगा ताकि आपको समझ आए। For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to pulling down the strongholds. आज के कलाम की गुड न्यूज ये है, खुदा का कलाम सिर्फ ख्यालों को डील नहीं करेगा, तसव्वुरात को और सोचों को डील नहीं करेगा, बल्कि उनके रिजल्ट में जो शैतान ने किला बना दिया, तेरी शादी नहीं होगी, तू अमीर नहीं होगा, तुझे शफा नहीं मिलेगी, तू घर नहीं खरीद सकता, तू गाड़ी नहीं खरीद सकता, तू ट्रैवल नहीं खरीद सकता। जो किला बना हुआ है, खुदा का कलाम उन किलों को ढा देने की ताकत रखता है। और मैं देख रहा हूं बहुत सारे सोचों के किले आपकी खोपड़ियों में चकनाचूर हो रहे हैं। इस कनोपी के अंदर, इस एटमॉस्फेयर के अंदर एंजल मेरे साथ स्पिरिचुअल बलडोजर लेकर ऑलरेडी आपके राइट साइड पर खड़े हैं, उन किलों को ढा देने के लिए। मैं नहीं जानता कौन सा किला तेरी खोपड़ी में है, फरिश्ते अपने बलडोजर लेकर रेडी हैं उनको डिमोलिश करने के लिए। हर एक नेगेटिव किला, हर एक मनफी किला, हर एक खौफ का किला, बीमारी का किला, नामौफी का किला, गुर्बत का किला, कर्जत का किला, आपकी लाइफ में खुदा के एंजल उसे डिमोलिश करने वाले हैं, उसे क्रश करने वाले हैं। शाउट हालेलुया। वो ख्याल लेता है, वो ख्याल लेता है, जस्ट छोटा सा स्टेज 1 आपके माइंड पर छोड़ देता है, आपका माइंड उसकी मूवी बनाता है, जिसे इमेजिनेशन कहते हैं, जिसे ख्याल और तसव्वुर कहते हैं। उसे पता है कि खुदा ने आपका माइंड ऐसा दिया है, आपको कोई एक वर्ड दे दे, आपको कोई एक जुमला दे दे, आपका माइंड उसकी फिल्म बना देता है। अब ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं, शैतान हवस के किले बना रहा है
آج کے موجودہ دور میں بیٹے اور بیٹیوں کو سوشل میڈیا سے بچا لیں، ورنہ آپ کی 10 سال بعد 20 سال بعد نسل برباد ہو جائے گی۔ اس لیے میں چرچ کے پلپٹ پر یہ ٹیچ کرتے ہوئے پریچ کرتے ہوئے کوئی شرم محسوس نہیں کر رہا، کیونکہ آج ان خیالات اور تصورات کو بنانے والی جو مشین فون کی شکل میں آپ کے ہاتھ میں، ایک تصویر، ایک ویڈیو، ایک کلپ، ایک ریل جب آپ بار بار دیکھیں گے کسی عورت کو بغیر کپڑوں کے، کسی مرد کو بغیر کپڑوں کے بار بار دیکھیں گے، آٹومیٹکلی ہوس کے قلعے آپ کے دماغ میں بن جائیں گے۔ آج میرجز برباد کیوں ہو رہی ہیں؟ مرد شادی شدہ ہونے کے باوجود چیٹنگ کیوں کر رہے ہیں؟ اور کیوں عورتیں شادی شدہ ہونے کے بعد کیوں مار رہی ہیں؟ یہ مشین ان کے ہاتھ میں یہ خیالات دے رہی ہے، بار بار گندے خیال، اور وہ قلعہ بن جاتا ہے۔ اس کو اپنا ہسبینڈ پسند نہیں آتا، اس کو کسی اور کا ہسبینڈ پسند آتا ہے۔ اس کو اپنی بیوی پسند نہیں آتی، کسی اور کی آتی۔ اسی طرح اور بے شمار خیال ہے۔ آج ایون شیطان بہت بڑا سائنٹسٹ ہے۔ ہماری باڈی میں 5 سینسز ہیں۔ Can I go higher? Can I go higher? ہم کوئی بھی ڈیٹا اس جسمانی دنیا سے 5 سینسر کے ذریعے لے رہے ہیں۔ ہمارے 5 سینسر ہیں جن سے ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی ہماری آنکھیں، اور شیطان کو پتہ ہے کہ آنکھیں مرد کی کمزوری ہے۔ مردوں کے اندر جو ویکنس ہے وہ آئیز ہے۔ مرد اس چیز پر یقین کرتا ہے، ایمان لاتا ہے جو وہ دیکھتا ہے۔ جب اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اپنی آنکھوں کو خدا یسوع کی آنکھیں، پاکرو کی آنکھیں، یہوہ خدا کی آنکھیں بنا لیں۔ اپنا فیوچر اپنی آنکھوں سے نہیں، خدا جو آپ کے اندر ہے اس کے ذریعے اپنا فیوچر دیکھیں۔ آپ کا فیوچر بہت برائٹ ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو آئیز کمزوری ہے۔ باغ عدن میں یہی ٹول شیطان نے استعمال کیا آدم اور حوا کا گھر برباد کرنے کے لیے۔ عورت کی کمزوری اس کے کان ہے۔ اگر یہ 2 مرد ہیں، ایک عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اور ایک مرد عورت کو بڑے خوبصورت کپڑے پہن کر دکھاتا ہے، بڑا نیٹ کلین رہتا ہے، اور دوسرا مرد اس عورت کی تعریفیں کرتا ہے، وہ بولنے میں آرٹسٹ ہے، وہ بولنے میں فنکار ہے، تو ایٹ دی اینڈ عورت اس ہینڈسم آدمی سے شادی نہیں کرے گی، اس کالے کلوچے سے کر لے گی جو بولنے میں استاد ہے، جو ماسٹر ہے۔ اور مرد بہت کم بولتے ہیں، سیریس مرد، فوکس مرد جو بزنس میں بیزی ہیں وہ بہت کم دیکھتے ہیں، اور اسی لیے بڑے بڑے بزنس مین آپ دیکھیں گے پیسہ ہونے کے باوجود شادی برباد ہو جاتی ہے۔ بل گیٹ کو دیکھ لیں، آپ سمجھتے ہیں عورت کی ضرورت پیسہ ہے، عورت کی ضرورت شاپنگ ہے، گاڑی ہے، تو بل گیٹ کی بیوی کیوں چھوڑ کر چلی گئی؟ پاسٹر بینی ہن کی بیوی کیوں چھوڑ کر چلی گئی؟ پاسٹر کرس کی بیوی کیوں چھوڑ کر چلی گئی؟ روحانیت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، انوائنٹنگ بھی ہے، اور بیوی کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ بیوی سے چکنی چوپڑی باتیں نہیں کر سکتے۔ عورت اس کے پیچھے جاتی ہے جو میٹھی باتیں بولنے میں کمال کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ عورتیں جب دعا کریں اپنی اس ویکنس کے لیے دعا کریں۔ آپ کی ویکنس آپ کے کان، عورت کانوں پر چلتی ہے، مرد آنکھوں پر چلتا ہے۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ مرد گاڑی بھی چلا رہا ہو اس کی نظر کھڑکی کے باہر ہوگی، اور عورت کدھر مرضی ہو اس کے کان پڑوسی کے ٹیبل پر ہوں گے۔ ویکھیا فلانے ٹیبل پہ ساڈے بارے گل ہو رہی، میں سن لے۔ اس کے کان ٹریول کرتے ہیں
तीसरे टेबल पर भी उसके बारे में बात हो रही, उसको पता हो, तीसरे घर में भी बात हो, उसके कानों तक पहुंचेगी कि उसके कान ट्रेवल करते हैं। अपने कानों की हिफाजत करे खवातीन। अब मैं इसको अपने कलाम की तरफ लेकर आऊंगा कि यही टूल शैतान को पता है, वो आपको ऐसे माहौल में पैदा करता है। लड़के जब बड़े होते हैं या छोटी बच्चियां, तो वो क्यों गरीब होते हैं, क्यों गरीबों वाली सोच होती है, वो आपके लाइफ में रॉन्ग लोग भेजता है, आपको गलत लोगों में रखता है, गलत सोसाइटी में रखता है। आप उनको देखकर जवान होते हैं। आप अपने मोहल्लेदार, रिश्तेदार, इवन स्कूल टीचर गरीब, लोग गरीब होते हैं पर बच्चों को इवन गरीबों वाले स्कूल में भेज देते हैं, टाटों वाले स्कूल में। तो बच्चे स्कूल में देखते हैं टीचर बन के भी गरीब ही, टाटों वाले स्कूल, पंखे नहीं है, खिड़कियां नहीं है, दरवाजे नहीं है, बस है उसकी बारियां नहीं है, सीटें फटी हुई हैं। अमीर के बच्चे अमीर क्यों होते हैं? वो अपनी कैपेसिटी से बढ़कर अपने बच्चे को स्कूल में भेजते हैं, वो माहौल देखते हैं। वहां पर जो गाड़ियों में आने वाले टीचर हैं, टीचरों के घर बड़े बड़े, उनकी सैलरी बड़ी, वो सैरें बड़ी जगह पर करते, खाना बड़ी जगह पर खाते। हम प्रोडक्ट है अपने आंखों का, अपने कानों का। हालेलुया। पैदाइश की किताब 12 बाब 1 से 5 तक हमने देखा है बाइबल में कि खुदा ने इब्राहिम को कहा कि अब पढ़ेगा हवाला, जरा गौर से सुनिएगा। पैदाइश 12 बाब 1 से 5। जल्दी से पढ़ेगा, जो भी पढ़े फास्ट पढ़े। और खुदावन ने अब्राहम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, तो तू बाई से बरकत हुआ। आमीन। पहले दोबारा पढ़ दे। और खुदावन ने अब्राहम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। आमीन। यह प्रॉब्लम बाप के साथ थी क्योंकि उसका नाम तारा था और वो बुतों की पूजा करता। नंबर 1 तो इशू ये था, पर मेन इशू ये था कि उसकी पूजा वर्शिप करने के बावजूद वो गरीब था। सारा खानदान गरीब था, रिश्तेदार, नातेदार, मोहल्लेदार, शहर वाले। तो खुदावन ने उसकी सोच को चेंज करने के लिए, उसके माइंड को चेंज करने के लिए बाप के घर को छोड़ दे, नातेदारों को छोड़ दे। बेसिकली खुदा उसकी मेंटालिटी, थिंकिंग पैटर्न, सोचने का स्टाइल, लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए उसे नए एनवायरनमेंट में ले जाना चाह रहा था। कि उसे पता था कि बाप के घर में सोचने का तरीका गलत है। मिसाल के तौर पर कुछ लोग गरीब क्यों हैं? बाइबल पढ़ने के बावजूद वो ऊपर से पढ़ते हैं, दिल से नहीं, दिल में रखते नहीं है, चल जाते हैं सिर्फ हाजिरी के लिए या बताने के लिए कि हम मसीह हैं। कलाम पे दूर दूर तक उनका कोई कनेक्शन नहीं है। तो वो लोग जब हदिये की बात आती है, शैतान हथौड़ा मारता है, ओए दोगे तुम गरीब हो जाओगे, तेरे पैसे कम हो जाएंगे, कैसे बिल देगा, कैसे फीसें देगा अगर तूने पहले दयकी निकाल दी। ए पादरी दे दयकी कर दे रहने ना दे। शैतान आपसे बोला। और दुनिया की अकल क्या कहती है कि देने से पैसे कम होते, तो आप दुनियादारी में हैं। शैतान ने आपको गुर्बत में ट्रैप कर लिया। जब पैसे हाथ में आए और ख्याल आया कि नहीं है दयकी देनी, नहीं हदिया देना, नहीं किसी प्रोग्राम में हिस्सा मिलाना, यहीं पर गुर्बत का किला काम करता है। क्योंकि आप कई सालों से इसी तरह सोच रहे हैं। हालेलुया। मुझ में और आप में फर्क ये है, कईयों ने यहीं पर मेरा जीरो लेवल देखा है। मैंने $5 से हदिया देना शुरू किया।
$5 कई साल मैं पैसे जो आप चंदे में उस वक्त 5 पैसे 10 पैसे 4 आने 8 आने उस सूरत में पैसे आते थे, मैं उसको सेव करके डॉलर में चेंज करता था कि खुदावन मुझे बरकत तुझसे डॉलर्स में चाहिए। और मैंने खुदा से अहद किया था, फकीरों वाली दौलत नहीं कि मैं किसी गोरे के तरले करूं, काले के तरले को मुझे पैसे दे, नहीं, तूने बुलाया है, यू कॉल मी, आई एम नॉट अ बैगर। और पैसों के लिए मैं लोगों को मिनोपुलेट ना करूं, धोखा ना दूं। कलाम कड़वा है, जैसा है सच्चाई से सुनाओ। मुझे मेरा खुदा के साथ ये अहद है, स्टिल यही है। कई जो अपने हथिये पर उछले हैं, मैंने हथिया देकर उनको निकाल दिया, गेट आउट, क्योंकि आप डिजर्व नहीं करते इस अनॉइंटिंग। हालेलुया। तो मैंने इस गुर्बत की स्पिरिट पर खुद गालिब आया। $5 से शुरू किया, कई साल 2009 2010 2011 2012 $5 चंदा मैं बाहर भेजता रहा हूं वेस्टर्न यूनियन के जरिए। $5 बेनहीम की मिनिस्ट्री को, पास्टर क्रिस की मिनिस्ट्री को, बड़े बड़े खादमों की मिनिस्ट्री को, अपने डैडी की मिनिस्ट्री को $5 2009 10 11 12 4 साल भेजे। फिर लोगों ने यहां कुछ और देना शुरू किया, मैंने उसको $10 $20 आज तक रसीदें पड़ी हैं मेरे पास। कितनी मिनिस्ट्रियों की मैंने हेल्प की है, कितने खादमों की, मलेशिया में, थाईलैंड में, अमेरिका में मैंने हेल्प की है। जब मैं खुद हेल्प के नजदीक था, मैंने उस सोच को चेंज किया, बाइबल से सीखा कि देने वाला लेने वाले से ज्यादा मुबारक है। क्या बाइबल में मेरी लाइफ की साइड ने चेंज की कि देने वाला लेने वाले से ज्यादा मुबारक है। अगर मुझे मुबारक बनना है, मुझे लेना नहीं, मुझे देना है। 2013 आया, खुदा ने मुझे सफर करने का मौका दिया। 14 आया, 15 आया, मैं $100 तक पहुंच गया। मैं देता रहा। मैंने कहा नहीं मुझे, और बाइबल में फिर एक और आयत मेरी लाइफ में आई कि छोटा बड़े से बरकत पाता है, छोटा बड़े से बरकत पाता है। मैंने कहा खुदा बता कौन से रियल जेन्युइन मैन ऑफ गॉड है जो शॉर्टकट करके नहीं, लोगों को लूट के नहीं, लोगों के ख्यालात और जज्बात से खेल कर नहीं, तेरे जरिए अमीर हुए हैं, मुझे दिखा। मैंने उनको हदिया सेंड करना है, भले वो मुझे जानते हैं मुझे नहीं जानते। आज जब आप मुझे हदिया दे रहे हैं, आप उन सब की अनॉइंटिंग को एक ही चैनल से रिसीव कर रहे हैं। तालियों की आवाज नहीं आई। फाइट की है गुर्बत की स्पिरिट से, ना दे ना दे ना दे, तेरे पैसे खत्म हो रहे हैं। पर खुदावन ने कहा देना लेने से ज्यादा मुबारक है, छोटा बड़े से बरकत पाता है। मैंने कहा खुदावन दिखा कौन बड़े हैं। उसने चंद हैंडफुल ऑफ लोग दिखाए जो प्योर और जेन्युइन है। इवन प्रेयर में जब मैं अपने $15 लेकर बैठकर रोता दिखा, किसको भेजना है, चल रिवील हुआ मेरे स्पिरिचुअल फादर का। मैंने कहा ये लोग हैं जिनको तू थे, और ये ऑलरेडी अमीरों में है, पर ये बड़े हैं जिनके बारे में मैंने बाइबल में ये लिखा है, छोटा बड़े से बरकत पाता है। जब तू देगा ऑलरेडी बरकत आ गई। मैंने उस सोच को जो शैतान ने बाप दादा से डाली कि देने से हम कम होते हैं, देने से हम घटते हैं, देने से हम माइनस होते हैं, खुदा के कलाम ने कहा देने से हम, मैं बीज बोने वाले को देता हूं। उसने कहा तू बीज बोने वाला है, मैं तुझे दूंगा। खुदा ने आजमाया, 15 16 17 आगे ऑफरिंग $500 तक चली गई। मैंने कहा खुदा मैं दूंगा, आई विल गिव। हालेलुया। और लास्ट ऑफरिंग मैंने $50,000 की दी है, 1.25 करोड़ की। जब मेरे फादर आए हैं, मुझे भी घर चाहिए, मैं चर्च के ऊपर रहता हूं,
मेरे घर के पैसे थे, मैंने सारे दे दिए, क्योंकि खुदा ने मुझे ओबे की, खुदा ने मुझे कमांड की, मैंने ओबे की। हालेलुया। अब जब खुदा मुझे ब्लेस करेगा, आप जेलस हो, पर मैं तुझे सीक्रेट बता रहा हूं, माई सन माई डॉटर, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ एंड सीक्रेट। ये सीक्रेट है, जब तक आप उस ख्याल को कलाम से तब्दील नहीं करेंगे, जो ख्याल कर रहा हो देगा तो खर्चेगा, वो ये डाकू है, सारे डाकू नहीं है, सारे चोर नहीं है, 5-6 उंगलियां बराबर नहीं है। तेरा वास्ता पड़ा होगा, मेरा भी बहुत वास्ता पड़ा है। मैंने 20 साल का सफर फर्श से तय किया, 3 साल इस चर्च की छत नहीं डली जब तक मैंने अपना 9.5 लाख नहीं मिलाया। इस चर्च में अरबपति लोग थे, करोड़पति लोग थे, यहाँ आते थे, इबादत करते थे, गर्मी में बैठते थे, पंखे में बैठते हुए हंस के चले जाते थे। किसी ने कहा पास्टर साहब ये ले पैसे, हम लैंडर डालते हैं। जब तक खुदा ने मुझे ब्लेस नहीं किया और सफर किया था, मैं खुदा को देता। मैंने उस सोच पर जो मेरी माँ के घराने, बाप के घराने से आ रही थी कि नहीं देन नाल गरीब होंदे ने, पादरियों ने दे, उस सोच को मैंने पांव के नीचे कुचल दिया। उसने कहा हर वो ख्याल जो मसीह के खिलाफ उठे उसको उसके ताबे बना दो। मैंने उस ख्याल की पकड़ी और उसको मसीह के पांव के नीचे रख दिया। मेरे यीशु ने गुर्बत की उस ख्याल को कुचल दिया। हालेलुया, हालेलुया। जब तक आप उन ख्यालों पर गालिब नहीं आएंगे, तब तक आप अपने हालात नहीं चेंज कर सकते। अब देने से मुझे दर्द नहीं होता। आई गिव लाइक वाटर, जैसे पानी कसरत में आप देंगे आपको तकलीफ नहीं होगी, पर वहां जहां खुदा कहेगा, हर जगह नहीं, हर बंदे को नहीं। खुदा ने मुझे सिखाया बाइबल से कि जब इब्राहिम घर से निकला, उसने कहा इसहाक को कुर्बान कर, तो उसके रास्ते में कई पहाड़ियां आई। जब आप मरी, नरांग, कगान, मलम जुबा जाते हैं, रास्ते में कई पहाड़ आते हैं। ऐसे ही पहाड़ी रास्ता तय करा था इब्राहिम। खुदा ने कहा मोरिया के पहाड़ पर देना है। कौन से पहाड़ पर? मोरिया के पहाड़ पर। आप रास्ते में जाएं, इवन इस मोहल्ले में 80 चर्च आएंगे कि आप पूछा है किसको दे, या अपना फैसला कर लिया या किसी से मशवरा लिया। प्रेयर करें, प्रेयर करें, प्रेयर करें। पूछे खुदावंद तूने बीज दिया है, कहां बोए, कहां बोए? खुदा रिवील करेगा, खुदा ख्वाब में दिखाएगा, खुदा बोझ डाल देगा। हालेलुया। खुदा ने उसको कहा रास्ते में एक पहाड़ आया, रास्ते में एक पहाड़ आया, बड़ा खूबसूरत था, थक गया, बूढ़ा था, 100 साल का था। उसने कहा इधर ही दे देता हूं। खुदा ने कहा मैंने कहा मोरिया के पहाड़ पर। खुदा चर्चों में से चर्च जाएगा। एफाता चर्च पाकिस्तान अपना जब तू हदिया लेकर आएगा, मैं तुझे सरफराज करूंगा। हालेलुया। सरफराजी तब है जब आपको एग्जैक्ट खुदा लोकेशन पर्सन दे। फिर अगला उसके हदिये पर क्या हमला हुआ? जब उसने हदिया दिया, खुदा ने कहा मैं लेने आऊंगा, और उससे पहले कवे और चीलें आ गई, उसके गोश्त पर छपकने लगी। लिखा शाम तक, पैदाइश 15 बाब घर जाकर पढ़ लीजिएगा। उसने कहा शाम तक इब्राहिम लड़ता रहा, इब्राहिम लड़ता रहा। उसने उन चीलों और कमों को उड़ाया। उसने कहा खुदा लेने आएगा। वो थक के सो गया। लिखा आसमान से एक आग आई, उसने उस हदिये को लिया और आवाज आई मैं तुझे कौमों का बाप बनाऊंगा। जब आप राइट लोकेशन पर सही खेत में बीज बोएंगे, तभी फसल उगेगी। ओ मैं उन्नू दिता है, मैं उन्नू दिता है, आप ही मैं उस बेवा को दे रहा हूं, मैं उस कफन के लिए दे रहा हूं। एक बंदे से मैंने बात की, जी मेरी बरकत के लिए दुआ करें। मैंने कहा मैं क्यों करूं? ओ मैं खुदा को बड़ा दे रहा हूं। किधर दे रहे हैं? जी मुझे खुदा ने कहा है तू खपन वास्ते दे, जेडे मर जान सड़का सुड़का दे, तू उन्होंने कफन दे। मैंने कहा कहां कलाम में लिखा है? कलाम से टैली करो, कहां लिखा है कलाम में कि तू कफन वालों के लिए दे? अक्कर तो ऑलरेडी 3 साल से दे रहा है, तो बरकत किधर है? वेयर इज द ब्लेसिंग? किधर है बरकत?
किधर है तेरे साफ कपड़े, जूते? तू कफन दे रहा है 3 सालों से, तेरा अपना कफन तैयार हो गया। अपनी मर्जी, मैंने यतीमों को देना है, मैंने बेवाओं को देना, खुद से ही लिखा है बाइबल में। पर क्या तुझे कहा है खुदा ने? क्या तूने आवाज सुनी है? और वो तब है जब आप अपने हदिये को, डायरेक्टली को अपने चर्च में देते हैं। उससे जो वाफर है वो आप बेवा यतीमों के लिए दे सकते हैं, वो भी जब खुदा करे, जज्बाती होकर नहीं। हदिया जज्बाती होकर नहीं दिया जाता। आज गुर्बत के किले को मैं ढा रहा हूं आपकी जिंदगी में, जो आपकी खोपड़ी के अंदर है। ये दुआ से नहीं है कितनी मर्जी कर लें, जितनी मर्जी गैर जुबान में दुआ कर लें। अगर अमीर होना होता तो खाना दुनिया की सुपर पावर होता। मैं लाइफ में 34 मुल्कों में गया हूं, पर सबसे ज्यादा दुआ करने वाले लोग घाना के अंदर है, पर गरीब है। दुआ करने से अमीर होने होते तो मर्दे खुदा एलिया जिसने आसमान से आग मंगवाई, वो बेवा से रोटी ना मांगता। दुआ खुदा के साथ कनेक्शन के लिए है, दुआ खुदा से कम्युनिकेशन के लिए, राब्ते के लिए, अमीर होने के लिए नहीं है। अमीर ऐसे हुआ जाता है। सुलेमान हदिया देकर सो गया, 1000 जानवर, उसे दुआ करना भी महसूस नहीं किया। लिखा रात को खुदा उसके ख्वाब में आया और कहता मांग, तू क्या मांगता है? खुदा ने ब्लैंक चेक सुलेमान के आगे रख दिया। जो गिवर होते हैं उनको दुआ करने की भी जरूरत नहीं होती। अगर वो टेंजिबल गिविंग करें, खुदा उनके आगे रख देता है। हालेलुया। आप इधर उधर भाग रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म जो आपको दिया खुदा ने, ये आपकी बरकत के लिए। टाइम ना देखे कितना लंबा है। ये वो वर्ड है जो खुदा के साथ मैंने सीजन किए हैं, खुदा के हजूर रिसीव किए हैं, और उन अल्फाजों के फल है, फ्रूट्स है, उस पर अमल करें। गुर्बत से बाहर आ जाएं। ऐसे ना दे दें कब्बों को उसने उड़ाया, चीलों को उड़ाया हम तक। जब आप दे से तुझे ब्लेसिंग हो, पढ़ जाकर 15 बार इब्राहिम ने चीलों को खाने नहीं दिया। गेट आउट। मेरे यहोवा खुदा ने कहा है, मोरिया का पहाड़ मैंने सफर किया, बड़े पहाड़ छोड़ के आऊं, रास्ते में बड़े चर्च आए, रास्ते में बड़े टाइटल आए, पर खुदा ने कहा इफाता चर्च में जाना है। और रास्ते में बड़ी चीलें आई, कितने आई, मैंने उनको नहीं दिया। जब आप ये बात स्ट्रिक्ट कर लेंगे, तब गुर्बत की गर्दन आप पकड़कर खुदा के ताबे कर देगा, वो कुचल देगा। उस दिन आप देखिएगा आपकी गुर्बत खत्म हो जाएगी। I will make you a blessing for the nations. मैंने तुझे बरकत नहीं बल्कि बाई से बरकत बनाया है। बीमारी से मैंने डील किया। मेरी फैमिली में आईज प्रॉब्लम है, ऐनक लगाने वाली, आई साइट वीकनेस मेरी मदर को है, मेरे फादर को है, मेरे ग्रैंडफादर को है। मैंने कहा मैंने ऐनक नहीं लगानी, ये जुआ नहीं रखना। नो, लोगों के लिए 40 रोजे रखे, मुझे यूरिन में ब्लड आना शुरू हो गया। मैंने कहा मैंने दवाई नहीं लेनी। खुदा ने मुझे कहा मेरा ब्लड भी कम्युनियन, ऐसे रस्म के तौर पर नहीं, यादगारी के तौर पर नहीं, ईमान रख। ये जब मैंने बोल दिया, ये मेरा लहू मेरे कलाम में लिखा है। जब आप कलाम को ऐसे ले लेंगे, कलाम खुदा है। ये जो बाइबल आपके पास है, यही खुदा है। उसने कहा इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था। रिपीट करें, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ, और कलाम ही खुदा था। इस किताब को अगर आप स्टोरी बुक पढ़ेंगे, ये स्टोरी बुक बन जाएगी। हिस्ट्री की बुक बनेंगे, हिस्ट्री की बुक बन जाएगी। इसको ऐसे ना पढ़े, एक एक आयत पर महीनों लगा दें, एक एक आयत पर हफ्तों लगा दें। जब उस आयत के अंदर से उसकी लाइट, उसकी रूह आपके अंदर एंटर होगी, वो आपकी जिंदगी चेंज कर देगी। हालेलुया। तो मुझे आयत मिली, शिफा बच्चों की रोटी। यू आर माई चाइल्ड। जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें फर्जंद होने का हक बख्शा। तूने मुझे कबूल किया, तू मेरा बेटा है, तू मेरा फर्जंद है। और उसने कहा शिफा बच्चों की रोटी है।
मेरे मार खाने से तूने शफा पाई। पौलुस कह रहा है कि तुम में बतेरे बीमार है, कमजोर है, क्योंकि उन्होंने कम्युनियन को वैल्यू नहीं दी। मर गए वो। जब ये आई था मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैंने ड्रिंक की कम्युनियन। और जब कुछ दिनों के बाद बीमारी जाती, आई साइट ठीक हो, ब्लड रुक गया बगैर मेडिसिन। जब आप इस चीज को, आप में खुदा का रूह है, आप में आपका रूह है, कोई भी बीमारी, कोई भी प्रॉब्लम, वो गरीबी हो, वो डिवोर्स हो, वो मौत हो, वो गरीबी हो, कुछ भी हो, उसका आगाज रूहानी दुनिया से होता है। हर एक किला आपके माइंड में है। आप दुनिया में हर चीज बड़े फैशन से करते हैं। औरतें वजनी बैग उठा लेंगी, बाइबल नहीं लाएंगी। इसमें लाइफ है। हर ख्याल को आज मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊं। एक डायरी लें, बैठ जाएं, कौन से गंदे ख्याल, मनफी ख्याल, खौफ के ख्याल शैतान आपको दे रहा है बड़े सालों से, उनको लिख ले। वेट करें 5 मिनट, गौर से पढ़ें, क्या दे रहा है तू मुझे, क्या फीड कर रहा है तू मुझे। टाइम ले, बाइबल रखे पास, गूगल निकाल लें। अब नेट का पॉजिटिव इस्तेमाल करें, उसके अपोजिट बाइबल में से आयत ढूंढे। अगर वो कहेगा तू मर जाएगा, बाइबल से आयतें निकालें। मैं मरूंगा नहीं, जीता रहूंगा, खुदा उनके कामों को बयान करूंगा। अगर वो कहे तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, आयत निकालें, खुदा आम दरख्त में अपने फरिश्तों से मेरी हिफाजत करेगा। वो सादिक के गिर्द उसके फरिश्ते खैमाजन होते हैं। उस आयत पर प्रेयर करें, डिक्लेयर करें, प्रेयर करें, डिक्लेयर करें, प्रेयर करें, डिक्लेयर करें, गौर करें, सोचें। जिस तरह आप गंदे ख्याल पर, मनफी ख्याल पर, खौफ के ख्याल पर सोचते हैं, उस आयत पर सोचें। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पढ़िएगा यशवा 1:8। और मैं क्लोज करता हूं, मैं इस पर क्लोज कर रहा हूं, प्रैक्टिकल बता रहा हूं। प्रैक्टिकल चर्च है ये, प्रैक्टिकल रिजल्ट होंगे। आज डिफरेंट कैटेगरी के लोग हैं, चर्च सिर्फ मौजा लेने आ रहे हैं। आप फिर रोएंगे, फिर पछताएंगे। मौजा देने वाला ले रहे, वो यीशु है। शरीयत की ये किताब तेरे शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे रात और दिन इसी का देना। दिन और रात, रात और दिन तुझे इसका क्या। रुक जाए, दिन और रात। आयत वो कह रहा है, एक आयत, एक हवाला, एक रेफरेंस तेरे दिन का और तेरी रात का आगाज कर। ना कि तू सोए, ओ आज बॉस ने बदतमीजी की है, मुझे नौकरी से निकालने के लिए कह दिया, अब मैं बिल कैसे दूंगा, अब मैं पानी कैसे दूंगा, अब मैं ये कैसे दूंगा, अब मैं फीसें कैसे दूंगा। आप नेगेटिव सोच रहे हैं। बॉस ने सिर्फ डांटा है, उसने नहीं कहा मैं तुझे निकाल दूंगा। आपने उस ख्याल को इमेजिनेशन बना दिया कि मेरी नौकरी चली गई, मेरे पैसे चले गए, मैं बिल कैसे दूंगा। आपने उसको कनेक्ट कर दिया सारे चैनल्स के साथ। क्यों आप रात सोने से पहले एक आयत ले, उस पर पढ़ें, उसको पढ़ें, उसको पढ़ें, खुद पर क्लेम करें, खुद पर डिक्लेयर करें, प्रेयर करें, एटमॉस्फेयर में डिक्लेयर करें, और सोते हुए भी उस आयत पर सोचें। आई विल सप्लाई ऑल ऑफ योर नीड्स, मैं तेरी तमाम जरूरतें पूरी करूंगा। मैं, जब खुदा कह रहा है, उसे कहा आसमान और जमीन टल जाएंगे, मेरे मुंह की बातें हर गज में टलेगी, घास सूख जाएगी, फूल कमला जाएंगे, पर खुदावन का कलाम अब तक कायम रहेगा। खुदा झूठा नहीं जो झूठ बोले, इब्लीस झूठा बल्कि झूठों का बाप है। वो जो ख्याल ले रहा है तेरी नौकरी चली जाएगी, आप उस ख्याल को दें कि खुदावन, जो मुबारक है वो शख्स जो दरिया के किनारे लगाया गया है, उसका पत्ता भी नहीं मर जाएगा, और जो भी वो करेगा वो बराबर होगा। जो भी काम, खुदावन मैं वो शख्स हूं जो तेरे कलाम की 40 किताबों के नदियों के अंदर लगाया गया है, मेरा पत्ता भी नहीं मर जाएगा।
हालेलुया। जब आप ये सोचेंगे खुदा आपको ब्लेस करे। हालेलुया। यहाँ लिखा है कि शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटने पाए, तुझे दिन और रात उसी का ध्यान हो। आगे, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके, इस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, अमल करे, क्योंकि तब ही तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी, तब ही तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। तो खूब कामयाब हो। बोले हालेलुया। मैं डिक्लेयर करता हूं यू विल बिकम वेरी सक्सेसफुल। खूब कामयाब हो, खूब कामयाब हो, खूब कामयाब हो। अगर कोई आकर मेरे सामने कुर्सी पर बैठ जाए और मुझे 1,00,000 बार भी कहेगा तू फेल हो जाएगा, मैं नहीं बिलीव करूंगा। उसको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा मेरे माइंड को चेंज करने के लिए। उसको एक जन्म लेना पड़ेगा। समझ आ रही है? मैंने इतनी बार इस आयत पर गौर किया। उसने कहा शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटने पाए, तुझे दिन रात इसी का ध्यान। आगाज रात का आयत से करें और जब आप सोएंगे, लिखा मैं अपने महबूब को नींद नहीं दे देता हूं। जब आपके कलाम में आपकी नींद में रात का आगाज आयत से होगा, वो आपका महबूब आपको नींद में दे देगा। आमीन की आवाज नहीं आए। जब दिन का आगाज आयत से होगा, आपको पूरे दिन के ऊपर कंट्रोल होगा, चीजें आपके ताबे होंगी, क्योंकि आपका खुदा उसे कहा मैं तुझे खूब कामयाब करूं, तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी। सक्सेस का सीक्रेट हार्ड वर्क नहीं है, वो सेकेंडरी है, वो दूसरे नंबर पर है, स्टेज 2 है। और पहले कलाम ले अपने अंदर। एक आयत, एक स्टोन, एक पत्थर काफी है आपकी जिंदगी के अंदर गुर्बत के, बीमारी के, जाति जूलियत को गिराने की। मैं नहीं जानता कितना मर्जी कर्जे का जाति जूलियत आपको ललकार रहा है। 20 लाख है, 50 लाख है, करोड़ है, भागे ना, रास्ता चेंज ना करें। उनके जुमलों ने, उनके झगड़ों ने, उनकी इंसल्ट ने मेरे लिए, आज मैं उनको दुआएं दे रहा हूं। थैंक यू आपकी इस इंसल्ट के लिए। मैं खुदा के उतना करीब हो गया, मैं खुदा के उतना करीब हो गया। मेरे दोस्तियां उतनी रिजेक्ट कर दी, फ्रेंडशिप, दोस्तियां, मैं उतना खुदा के करीब हो गया। आपके ऊपर जब प्रेशर आता है, आप नंबरों पे कॉल करते हैं, पैसे दे दो, 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 पैसे। खुदा के पास जाएं, मांगे उससे जो सबको दे। किस चर्च में आप आ रहे हैं, आपको वैल्यू नहीं है, ना डायरेक्शन की, ना काउंसलिंग की, ना कलाम की, तो कैसे हालात चेंज होंगे? ऐसे नकम्मे लोग, जब मौजा नहीं होता, कुछ लोग, आखिरी बात मैं क्लोज करूंगा, कुछ लोग मौजा लेने आते हैं, फेस बदल के, सिर्फ मौजा लेने आए। मैं अब नाम बनाम उठा सकता हूं, नाम बनाम, आई नो यू। मौजा लेने आए हैं, यीशु लेने नहीं आए। तो जब आपकी जरूरत, खुदा थोड़ी सी लेट करेगा, क्योंकि खुदा आपका करैक्टर चेंज करना चाहता है, आपकी सोच, आपका माइंड चेंज करना चाहता है। आप बुड़बुड़ाएंगे और चर्च चेंज कर देंगे। उस घर मेरे मुझे नहीं मिला, उधर तुझे मौजा मिला, मेनू नहीं मिला। चर्च चेंज, पादरी चेंज, चर्च चेंज, पादरी चेंज, चर्च चेंज, पादरी चेंज। जितने भी चर्च पादरी चेंज कर लेंगे, लाइफ चेंज नहीं होगी जब तक अपना माइंड चेंज नहीं करेंगे। हालेलुया। अपना माइंड चेंज नहीं करेंगे, गरीबों वाली सोच छोड़े। आज खुदा आपको आपकी दैयकी के लिफाफे से तोलता है कि आप कितने स्पिरिचुअल हैं। ये मैं आपको कड़वी सच्चाई बताऊं, खुदा आपको 10 घंटे की दुआ से नहीं देखता कितना स्पिरिचुअल है ये। खुदा आपको 10 रोजों से, 20 रोजों से नहीं देखता कितना स्पिरिचुअल है, कितनी गैर ज़बानें बोलता है। उसने कहा जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल है, जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 2022 में जितने भी खादम आए,
चार्ल्स इब्राहम, एनक, रंबीवा, मेरा स्पिरिचुअल ब्रदर जोशुआ, इवन मेरे डैडी यहां जब आए हैं, उनको टिकटें, उनको होटल, उनको जाते हुए $2000 कैश दिया। इवन जे खादम आए अभी रिसेंटली, टिकटें, $2000 होटल का बिल दिया। एक वक्त उन्होंने मुझे 1 बार टिकट दी, 2 बार टिकट दी। मैंने कहा अब नहीं, अब मैं रिवर्स कर, और खुदा ने उसका बिल बनाया। ये शौकी नहीं है, ये आपको अपनी गवाही सुना रहा हूं कि खुदा कब आपके हाथ के काम पर बरकत डालता है। खुदा ने मुझे दाऊद दिखाया, आप लोगों के लिए गौर से सुनिएगा। डू लाइक दिस। दाऊद की भेड़ को रीछ ने, शेर ने मुंह में डाल दिया। आपके बिजनेस को, आपके पैसे को, आपकी मैरिज को, आपके बच्चे को शेर ने, उस असलहे ने मुंह में डाला। दाऊद जिनके अंदर खुदा का रूह होता है, वो दुश्मन को देख के भागते नहीं हैं, बल्कि दुश्मन की तरफ जाते हैं। वो अपने दुश्मन की तरफ गया, उसका मुंह खोला, अपनी भेड़ निकाली है और उसका मुंह चीर दिया। मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूं, जो कुछ भी शैतान आपके बाप दादा के लाइफ से निकल गया है, ना सिर्फ आप उसके मुंह से रिस्टोर करें, बल्कि उसका मुंह चीर दे यीशु के नाम से। खड़े हो जाए अपने कदमों पे और उसका मुंह चीर दे यीशु के नाम से। उसका मुंह चीर दे यीशु के नाम से। अगर वो तेरी बरकत को, तेरी सेहत को, तेरी मैरिज को, तेरे बिजनेस को, तेरी फैमिली को, तेरे मुकद्दर को निकल गया है, डरे ना, भागे ना उन बदुओं से, उनको फेस करें, क्योंकि आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं। जो रूह तेरे अंदर है वो दुनिया के रूह से बड़ा है। बोले हालेलुया, हालेलुया की आवाज में प्रेज़ द लॉर्ड।